9:15 to 9:30 p.m. And follow us on Twitter at AIR News Alerts and on our other digital platforms. This is the FM Gold channel of All India Radio. In the program Manthan Faisalon Ka series, now we bring you a discussion on schemes to stimulate economic activities. The participants are Jayanto Das, economic analyst, and Arjun J. Chaudhary, journalist. In today's program, we will discuss about the cabinet approval of 5,300 crore rupees in the form of capital infusion via recap bonds to IIFCL, the India Infrastructure Finance Company, and what is the impact of that in this current financial year for the infrastructure sector, and also the partial credit guarantee scheme for public sector banks to purchase financially sound non-banking finance companies, NBFC or HFC assets, which is the housing finance companies. Jayanto, let's try and understand for the benefit of our listeners, what are recap bonds and what is this cabinet approval of 5,000 crore rupees capital infusion into IIFCL? Typically, what it allows is recapitulation of equity in terms of what requires for IIFCL to raise further money to support infrastructure projects. Now, that can be done through a direct equity investment, which the government may or may not do it, or they can be done through recapitulation of bonds, whereby the government will issue bonds, which further can be recapitalized to issue those capital. What needs to be understood is, this point of time, they are planning to raise even the equity of IIFCL to 25,000 crores subscribed equity. I think from the existing 6,000 crores authorized capital which they have now. And this has to be looked at the perspective of two things. One is you have 100 lakh crore of investment infrastructure committed by the government over the next 5 to 6 years. Now, this money at this point of time has to come in from government supported institutions, right? And IIFCL has been focused on to take care of big ticket infrastructure investments in the country, which the government is planning in a big manner. Now, taking care of that, it's important to infuse capital so that this particular institution is capital adequate to further raise funds or to invest or infuse funds in such projects. This is a forward-looking approach in terms of what they announced in the budget, and within 5 to 6 months what they are doing through this cabinet approval and harnessing the overall capital adequacy of IIFCL. So we're looking at two aspects here. One is the financing of IIFCL, by which they will borrow from the public to recap bonds. So it will be a liability on IIFCL. The other is a structural change, whereby the authorized capital of IIFCL would be raised from 6,000 crore rupees to 25,000 crore rupees, which means the issue of additional equity shares of IIFCL. Who will be holding this share? Would it be the government or would it be the public? Would it be outstanding shares? This is an interesting question, because the paid up equity capital authorized now will be 25,000 crores. The government will be infusing around 15,000 crores as of now, and 6,000 crores is already what was authorized share capital existing. Both of them, it works out to 21,000 crores. So there is another 4,000 crores of opportunity to raise. We have to see whether the government would like to raise it from public or would like to raise it from international institutions, or government maybe like to further infuse funds in the future. As of now, we are not clear on what exactly would the government like to do in the last mile, but what's important to understand here is, with the authorized share capital of 25,000 crores at this point of time, your leverage on raising further funds from other agencies increases tremendously, and especially when the government itself is putting in 21,000 crores post this 15,000. So now we're looking also at the rating of IIFCL. S&P had raised the rating to BBB. This was last year itself. Now with this capital infusion through recap bonds, which would be a liability, plus the authorized capital being raised from 6,000 to 25,000 crore rupees, that would really skyrocket the rating of IIFCL. So they should not have a problem raising further funds from the public, not by issuing bonds, but simply by issuing shares. Depends on what the government chooses per se in terms of raising capital. Now, as you said, bond could be one route, equity could be other route. Issuing equity also means getting let go of part of your stake. Government's call whether they would like to do it or not. But coming back to your initial observation, I completely agree with you. The capital adequacy of the institution now has been strengthened. So obviously the ratings and all would help tremendously for the next few years for IIFCL to further go and raise funds in whatever paper manner they want to do it. Plus, this authorized capital reserve for the company would also go towards guaranteeing the repayment of the recap bond. 5,000 crore, that also remains, and also if IIFCL itself decides to raise debt from the open market, so obviously with a fairly strong equity base, chance of raising debt and things like that also becomes much more attractive. So as I said, the avenues are a lot of them in terms of opening up of avenues for raising capital.
What form of capital will be raised, this paper form specifically, is what the government of the day would have to take a call on. But as I said, in terms of harnessing the capital adequacy of IFCL, I think government has done this first job, and that was a committed job. As I said, if you look at the bigger picture, it aligns and synergizes the government's overall strategy of mega big ticket infrastructure projects to be supported by IFCL. So this is the first part where you're looking to increase the financial strength of IIFCL so that it can leverage that financial base to raise more capital, obviously for its objective of financing infrastructure projects worth 100 lakh crore rupees in the next 5 years. So we are looking at a policy implementation through IIFCL. There was also talk earlier of the merger between IFCI and IIFCL so that it becomes a financial powerhouse to finance infrastructure projects. Now the key question is, what would it be used for specifically in the infrastructure sector? How would the public benefit in terms of employment and income earned with the government infusing this kind of capital into infrastructure projects? And how do you see businesses benefiting by becoming service providers or supplying products to infrastructure companies? Well, typically, see, what needs to be understood is very strong ecosystem needs to be created, because none of the infrastructure projects will generate money from the first or second year. They all would have long gestation periods, 8 years plus, most of the cases. Some of them obviously will be lucky enough to have returns from 6 years plus onwards. Having said so, none of the infrastructure projects are also extremely of high value returns and all. I mean, we have very moderate returns from infrastructure projects. What does happen is, given the huge investment comes in, there is a moderate guarantee of money flowing in, because infrastructure is one thing where almost you have guaranteed assurance of some returns, but you have to wait. I mean, that's where the difference of the quality of the infrastructure project varies from time to time. That's Market Mantra brought to you by नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और अवसर बीत जाए। अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आके चले जाएंगे। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए। बड़े हाँ छोटे। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Paul Thotham. With me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद पॉल। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे। प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर SP शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से, जिन्हें आप तक ला रहे हैं पॉल थॉटम। Equity benchmarks advance to fresh lifetime highs for the third session in a row. Sensex closes at 41,674. Nifty settles at 12,260. The rupee weakened 6 paise against the US dollar, and Brent crude prices hover above $66 per barrel. प्रमुख घरेलू सूचकांक लगातार तीसरे सत्र ताजा उच्चतम स्तरों पर। सेंसेक्स 41,674 और निफ्टी 12,260 पर हुए बंद। रुपया डॉलर के मुकाबले 6 पैसे की गिरावट में रहा और ब्रेंट कच्चा तेल $66 प्रति बैरल के ऊपर था। And listeners, before we start with our program Market Mantra and with our in-house expert Dr. SP Sharma, I'd like to make a small announcement.
we would like to inform you that we have started a new program, Money Matters, based on financial literacy and inclusion. You may listen to this interactive program on our official YouTube channel and other digital platforms from 4:05 p.m. to 4:30 p.m. in the evening. Each show will have a particular topic. Tomorrow's topic is trading in foreign exchange markets. You may ask questions about savings, investments, loans and taxations too. Please send your queries onto our email ID moneymatters.air@gmail.com. और अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं शेयर बाजार से, जहां से बहुत ही उत्साहजनक खबर है। विदेशी फंडों का प्रवाह बने रहने के बीच ऊर्जा, आईटी और ऑटो कंपनियों में खरीदारी के बल पर प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक आज लगातार तीसरे सत्र ऐतिहासिक उच्चतम स्तरों पर जा पहुंचे। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स दिन में एक समय 41,719 के रिकॉर्ड अंतरदिवसीय स्तर तक बढ़ जाने के बाद कुल 0.28% की तेजी से 115 अंक बढ़कर 41,674 पर बंद हुआ, जो सेंसेक्स का ताजा उच्चतम समापन स्तर है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.31% की तेजी से 38 अंक बढ़कर 12,260 के नए उच्चतम स्तर पर जा पहुंचा। विस्तारित बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.17% की बढ़त में रहा और बीएसई स्मॉल कैप सूचकांक 0.06% की वृद्धि पर बंद हुआ। Equity benchmarks today advanced to fresh lifetime highs for the third session, spurred by buying in energy, IT and auto counters amid persistent foreign fund inflows. After rallying to its lifetime intraday high of 41,719, the 30-share BSE Sensex settled 115 points or 0.28% higher at its fresh closing record of 41,674. Similarly, the broader NSE Nifty rose 38 points or 0.31% to its new peak of 12,260. In the broader market, the S&P BSE Mid Cap Index rose 0.17% and the S&P BSE Small Cap Index rose 0.06%. The market breadth was positive. On BSE, 1,251 shares advanced while 1,241 shares declined. A total of 173 shares were unchanged. Yes Bank was the top gainer in the Sensex pack, rallying 6.7%, followed by TCS, Tata Motors, Bharti Airtel, M&M and RIL. On the other hand, Vedanta, HDFC, Sun Pharma and IndusInd Bank unfortunately shed up to 2.3%. According to traders, after opening on a cautious note on news of US President Donald Trump's impeachment by the House of Representatives, domestic equities resumed their record-setting streak amid unabated foreign fund inflows. Sectorally, BSE Telecom, Energy, Auto, Tech, IT, Oil and Gas, Consumer Durables and FMCG indices ended up to 2% higher. However, Finance, Capital Goods, Realty, Utilities and Bankex settled up to 0.31% lower. डॉक्टर शर्मा, ऑब्वियस क्वेश्चन, लगातार तीसरे सत्र सेंसेक्स और निफ्टी लाइफटाइम ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। क्या रीजंस आपको लगते हैं इस उत्साह के बाजार में? देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि बजट आने वाला है, बजट में अभी बहुत ही, अगर हम कहें कि 5-6 हफ्ते ही बचे हैं कि बजट आएगा और बहुत सारी आशाएं हैं कि बजट में और रिफॉर्म्स होने वाली हैं, खासकर जो टैक्सेशन के ऊपर जो आज जो बात हो रही है कि टैक्स रेट कट होना चाहिए, जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए कुछ रिलीफ होना चाहिए, तरह तरह की कुछ संभावनाएं हैं कि एटलीस्ट 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। तो उसी वजह को देखते हुए जो मार्केट्स हैं वो उछाल पे हैं, क्योंकि जब भी कोई ऐसा रिलीफ आता है तो अल्टीमेटली उनका मार्केट्स को फ़ायदा होता है, क्योंकि डिमांड इंक्रीज़ होती है। डिमांड इंक्रीज़ होने से जो बिजनेस सेंटिमेंट्स हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ग्रो अप करती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो सरकार ने रिफॉर्म्स की हैं, जो भी पिछले 2-3 महीने में बहुत सारी रिफॉर्म्स हुई हैं, उनका जो लैग्ड इफेक्ट, जो उनका इफेक्ट आना अभी चालू होगा आने वाले कुछ क्वार्टर में, क्योंकि मार्केट्स जो है हमेशा वो फॉरवर्ड लुकिंग है। मार्केट्स देखते हैं कि आने वाले जो क्वार्टर्स हैं, जो आने वाले महीने हैं, उनमें से कैसा इकोनॉमिक मोमेंटम रहेगा, और वो बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि सरकार निरंतर रिफॉर्म्स करती जा रही है। रिफॉर्म के बाद रिफॉर्म हुई है, कोई ऐसी सेगमेंट नहीं है जिसके लिए रिफॉर्म नहीं हुई, चाहे वो MSME सेक्टर हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर का मर्जर हो,
चाहे वो कॉरपोरेट टैक्स में कटौती हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बेनिफिट्स हों, बहुत सारी रिफॉर्म्स हैं, हर एक सेगमेंट में रिफॉर्म है। तो आने वाले टाइम में इन रिफॉर्म्स का किस तरीके से जो भरपूर एक आने वाला है जो नतीजा, जो कि बिजनेस सेंटीमेंट इंक्रीज होने वाला है, उसी को देख के मार्केट्स जो है वो हाई पे हैं। और तीसरा कारण है कि जो इंटरनेशनल लिक्विडिटी है, जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं, वो भी एक पॉजिटिवली सेटल होते हुए पीछे कुछ वीक्स में हमने देखे हैं, तो उसका भी एक पॉजिटिव असर है। डॉक्टर शर्मा, इनफैक्ट आपने इंटरनेशनल लिक्विडिटी की बात करी, तो 2014 के बाद से जो FIIs हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने लगभग 1 लाख करोड़ रुपया इस साल वर्ष 2019 में लगाया है भारत में, जो 2014 के बाद का सबसे हाईएस्ट नेट बाइंग है FIIs का एक वर्ष में। सो ये जो एकदम से फॉरेन लिक्विडिटी हमारे बाजार में आ रही है, वो इन्हीं सब फंडामेंटल्स को देखते हुए आ रही है, जो अभी आपने बताया, जो इतनी सारी रिफॉर्म्स सरकार कर रही है, उससे उत्साहित है ये निवेशक। और आगे भी आपको लगता है कि बजट तक, ये जो प्री बजट रैली बजट तक चलती रहेगी? जी बिल्कुल, रैली चलती रहेगी। बीच में हम ये नहीं कहेंगे कि कंसिस्टेंस है, इसमें बहुत सारी चीजें कि कंटिन्यूसली ये चलेगी। बीच में उछाल भी आ सकते हैं, उतराव चढ़ाव तो रहेंगे। मार्केट्स में प्रॉफिट बुकिंग आती है एक स्तर पे जाके, जैसे अभी ऑल टाइम हाई है, हो सकता है कल मार्केट में लोग प्रॉफिट बुक करें, फिर उसके बाद वापस बाइंग आए। तो कंटिन्यूटी के ऊपर तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये एक ही साइड में निरंतर चलती रहेंगी और हर रोज नया हाई बनाएंगी। वॉलेटाइल तो रहेंगी क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन पॉजिटिव रहेंगी। जो वॉलेटिलिटी है वो भी एक पॉजिटिवली बायस्ड रहेगी। जो मार्केट्स का उछाल है जो आगे की तरफ ही रहेगा। और दूसरा, जैसे आपने बताया कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो है 2019 में आया है, FIIs ने काफ़ी तवज्जो दी है हमारे देश में इन्वेस्ट करने के लिए। तो उसके पीछे कारण यही है कि बहुत सारी रिफॉर्म्स जो हुई हैं पीछे के कुछ ही महीनों में हुई हैं जी। और खासकर जो अगर हम ये जो सरकार का रिफॉर्म प्रोसेस था वो शुरू हो गया था 2014 में, जब मेक इन इंडिया अनाउंस हुआ है। लेकिन उसके बाद रिफॉर्म्स का जो गति आई है, जो एक आप उनको ये कहें कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड रिफॉर्म्स कहें, जिससे कि बिजनेसेस को एक्चुअल में फायदा होता है, और या फिर आप कहें कि जो रेपो रेट कट जो RBI ने, भले ही उसका ट्रांसमिशन अभी नहीं हुआ है, लेकिन एक सेंटीमेंट पॉजिटिव बना है कि RBI एक सॉफ्टर पॉलिसी स्टांस चाहता है। RBI चाहता है कि रेट कट हो और जो कॉस्ट ऑफ मनी है जो वो नीचे आए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो, चाहे अभी वो ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, लेकिन एक पॉजिटिविटी है कि बैंक्स शायद आने वाले टाइम में इस चीज को आगे ट्रांसमिट करेंगे। लोगों के पास जो भी RBI ने कट किया है 135 बेसिस पॉइंट्स का, जो अभी ट्रांसमिशन है वो 50 से भी कम है, उसका पूरा फायदा जो है लोगों को आने वाले टाइम में मिलेगा। तो ये एक ऐसी संभावनाएं हैं जिनके ऊपर मार्केट्स आगे चल रही हैं। डॉक्टर शर्मा, you talked about positivity and you talked about sentiments. There is a very interesting observation that if you make in today's story, that Donald Trump got impeached and the foreign fund flows were unabated. How do you interpret this in today's market? Yeah, because I always say that political developments, now the markets are driven by the political developments and the political statements. Actually, the things are not happening at the ground level, but there are a lot of debates and lot of sayings and lot of tweets every time which are impacting the market scenarios, market sentiments, sometimes positively and sometimes negatively. I don't see any repercussion or any long lasting impact on the markets, but the markets will remain volatile from the such kind of statements. इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और अवसर बीत जाए। अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आके चले जाएंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए। बड़े छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। एक छोटा सा
पॉइंट है जो हमेशा थोड़ा सा परेशान करता है कि जैसे आज का भी अगर हम देखें चढ़ता हुआ बाजार जो बिल्कुल ऑल टाइम हाईस पे पहुंचे सेंसेक्स और निफ्टी, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप जो स्पेस है उसकी अंडर परफॉर्मेंस रही, हालांकि बढ़त थी। एंड 170 से ज्यादा स्टॉक्स स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस से फ्रेश 52 वीक लोज पर आ गए। सो ये जो कंटिन्यूस अंडर परफॉर्मेंस है ब्रॉडर मार्केट की, क्या ये एक चिंता का विषय है, या आपको लगता है कि जो ये रिफॉर्म्स हैं इनका लैग्ड इफेक्ट जैसे आना शुरू होगा, जब आना शुरू होगा तो हम एक ब्रॉड बेस्ड बढ़त देखेंगे बाजार में? देखिए, इसमें ऐसा है कि जब भी मार्केट्स न्यू हाइज बनाती हैं, जब मार्केट्स बुल मार्केट में होती हैं, बुल मोड में होती हैं, तो उस टाइम पे कुछ स्टॉक्स हैं जो लीड लेते हैं, जैसे कि फिर उनको कैट्स एंड डॉग्स फॉलो कर, जिनको हम छोटे मझोले शेयर्स कहते हैं। अभी अगर आपने पीछे देखा होगा कुछ हफ्ते पहले मार्केट्स में कुछ शेयर्स चले, उसके बाद दूसरों में भी तेजी आई, फिर जब वो जाके रैली रुक जाती है तो प्रॉफिट बुकिंग भी पहले छोटे मझोले शेयरों में आती है, उनमें बुकिंग आती है, वो कई बार बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है कि उनका जो पीछे के कुछ महीनों को गेन होते हैं वो सारे वापस फिर उसी स्तर पे आ जाते हैं। और जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें एक कंटिन्यूटी इसलिए इस वजह से रहती है क्योंकि ऑलरेडी उनका जो इंटीग्रेटेडनेस है, जो उनके बिजनेस सेटअप्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग है, उनके जो स्टॉक्स हैं वो अच्छे से चलते हैं, और कई जब वो न्यू हाइज भी बना लेते हैं तो काफ़ी देर तक वहाँ पे सस्टेन करते हैं। और उसी को जब ये दूसरे छोटे मझोले शेयर्स फॉलो करते हैं तो उनमें जहां तक वो नया स्तर बनाते हैं उसमें वापस प्रॉफिट बुकिंग आके फिर वो नीचे के स्तर पे वापस आते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि इन शेयरों में साइकिल डिफरेंट रहती है दोनों की, और इसका कारण ये है कि जो हमारा अभी एमएसएमई सेक्टर है, जो छोटे मझोले शेयर हैं, उनमें एमएसएमई सेक्टर में अभी कुछ चैलेंजेस बाकी हैं। सरकार ने रिफॉर्म्स तो की हैं, बहुत सारी रिफॉर्म्स की हैं। अगर आप लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप में देखें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुई है, लेबर मार्केट में रिफॉर्म्स हुई हैं, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट अलाउ कर दिया गया है, आरबीआई ने रेट कट कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा डिस्कनेक्ट ये है कि सिंक्रेनाइजेशन ऑफ रिफॉर्म्स, कॉम्प्लीमेंट्रिटीज ऑफ द रिफॉर्म्स, अगर आपने 3 चीज़ों में तो रिफॉर्म्स कर दिया, आपने लेबर मार्केट में रिफॉर्म्स कर दिया, आपने रेपो रेट कट कर दिया, आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 144 से ला के आप 63 पे ले आए हो, लेकिन लैंड की अवेलेबिलिटी ना हो तो फिर फैक्ट्रीज कैसे लगेंगी वहाँ पे? तो सारी जो सिंक्रेनाइजेशन है, जो कॉम्प्लीमेंट्रिटीज हैं वो क्रिएट होनी चाहिए, जो रिफॉर्म्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट होनी चाहिए। अगर एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ की जरूरत है तो उसमें भी रिफॉर्म्स होनी चाहिए, चाहे वो स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन उसके लिए हमारा यही आग्रह है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस है सरकार का, जो स्टेट गवर्नमेंट्स भी आगे आएँ, उनके ऊपर जो रिफॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है उनको इम्प्लीमेंट करें। अब जैसे कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है, अब तो नोटिफिकेशन निकल गया है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट अलाउड है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, फैक्ट्रीज अब हायर कर सकती हैं कुछ समय के लिए, लेकिन उसको स्टेट्स कितना अडॉप्ट करेंगे आने वाले टाइम में? अभी तक वो 2 स्टेट्स ने ही अडॉप्ट किया है, तो आने वाले टाइम में अगर वो पूरे के पूरे स्टेट्स अडॉप्ट करें तो पूरा रिफॉर्म्स का जो इफेक्ट है वो एक ग्राउंड लेवल पे आएगा। तो यही कारण है कि जो कंपनीज अभी काफ़ी एस्टेब्लिश्ड हैं, जिनके बिजनेसेस काफ़ी प्रफुल्लित हैं, जो कि नोन हैं नेशनली एंड इंटरनेशनली, उनके शेयर्स जब न्यू हाई बनाते हैं तो वहाँ पे जाके वो स्टेबल रहते हैं। लेकिन कईयों में जो रैली उनकी वजह से उनको देख के आती है, उनमें प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि उनके बिजनेसेस जो हैं उतने ज़्यादा स्ट्रांगली एंटिसिपेट नहीं किए जा सकते, क्योंकि उनके पास बहुत लंबे समय तक होल्ड करना चाहते। यस, Dr. Sharma, you talked very beautifully about positivity, reforms, and the government giving a lot of push to industry and economy building. And another positive thing that the government has done is making the NEFT transactions 24/7. But on the flip side, what you talk about synchronization, the banks are a little worried. They're saying that it is going to affect negatively their CRR. Now, what is your comment on that? I mean, and how does this 24/7 NEFT help industry growth and take care of the demand supply? I think this was the need of the hour actually, because if the reforms or the facilitation is not provided 24/7, if I have to send some money to somebody needy at a point of time, and and the availability of NEFT is there, but I am not following the time and there is no availability of the NEFT at that particular time, I will not be able to send my money to the needy person. So this should be available at 24/7. I don't see any negative effect of this
development in the CRR, because this is only apprehension of the banks, because the money is CRR is always at a set pattern. So the liquidity will be available only on the pattern of the CRR set up by the banks, which is the limit set up by the Reserve Bank of India, and the rest of the money is available for the liquidity system, which the consumers can withdraw any point of time, either by check or either by digital transaction or any other mode of the banking system. So this is only, I believe, apprehension. Yes, so talking about change and people adapting to it willfully has always been a question mark all over the world. Yes. Coming to that, otherwise this is very good development. This will facilitate the business environment also. What about the consultations that the finance minister is doing with different industry bodies towards the budget, setting up of the budget? Can you give us some insight on that? What is the industry response? Yes, there are always consultations by the Ministry of Finance with the industry people, like their expectations from the budget and their submissions regarding their issues and challenges to the Ministry of Finance, to the Honorable Finance Minister. And every industry chamber submits their particular suggestions to the Ministry of Finance. And like every year, this year also we submitted our suggestions. We have submitted 11 major points for the consideration of the government, of which this is at the forefront that there must be synchronization of the reforms. If the reforms are happening at one stage, then that should also happen in the other complementary areas. Like if the reforms are happening in the labor market, then that should be facilitated by the availability of land to invest more and more in the factories by the corporate sector. And second, we have suggested that there must be reforms in the direct taxes, because direct tax reforms are still not happening. Direct taxes are very, very complicated, and there should not be any tax on income up to the 5 lakh. So that is the suggestion from our side, to increase the demand scenario, because demand is a major challenge. Economy now is at a very delicate juncture actually, because demand is not happening, either the domestic or the internationally. So firstly, domestic demand can be boosted by the increase in money or by increase in the income of the rural people. So other reforms like facilitation of the MSMEs, a separate fund for the MSMEs, then reforms in the social infrastructure like education and health. There were a lot of reforms, and the ministry is also very receptive of the reforms, and they are listening all the connotations and all the suggestions made by the industry. Listeners, before we take forward our discussion with Dr. Sharma in the studio, let's take a small break. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है। अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे, और अगर लापरवाही की बाजू वाले से भिड़ोगे। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए और बाजू वाले की नहीं, अपनी अकल लगाइए। बड़े भैया। अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। जैसा आपने अभी बताया कि इंडस्ट्री बॉडीज की मीटिंग हुई है, प्री बजट कंसल्टेशंस वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ, वित्त मंत्री के साथ, जिसमें आपने जो पहलू सबसे ज़्यादा सामने रखा है उनके की डिमांड क्रिएट होनी चाहिए, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तभी मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी और इंडस्ट्री में ग्रोथ होगी। इसमें आपने टैक्सेशन रिफॉर्म्स की बात करी, और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश देगी सरकार, उस सब के लिए जो एक्सपेंडिचर लगेगा, वो आपको लगता है कि फिस्कल डेफिसिट पर अगर कुछ आंच आती है, अगर वो ब्रीच हो जाता है, तो वो हमारी साख जो है इंटरनेशनल मार्केट में वो सफ़र करेगी, या अभी जो हमारी सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन, उसमें फिस्कल डेफिसिट पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए? एज एन एक्सपर्ट आपको क्या लगता है? देखिए, हम समझते हैं कि फिस्कल डेफिसिट इस टाइम पे कोई मेजर वरिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए, और वो उसकी स्थिति ऐसी खराब भी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा हमारा फिस्कल डेफिसिट है 4% से ऊपर है तो बहुत ही वरिंग फैक्टर है। अभी हमारा फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है। अगर इसमें 1-2 पॉइंट्स की, दशमलव पॉइंट्स की टिंकरिंग भी हो जाती है तो उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 3.4 है, 3.5 भी हो जाएगा, इवन के 3.6 भी हो जाएगा, हम नहीं समझते कि उसका कोई मेजर इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि हमें
सबसे पहले इकोनॉमी में डिमांड को एड्रेस करना है, और डिमांड इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चाहिए। सरकार को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करे। जब डिमांड इंक्रीज होगी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा। जब डिमांड इंक्रीज होगी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। लोग जब खरीदारी करेंगे तो जो फैक्ट्री प्रोड्यूस है उसका कंजम्पशन होगा, तो फैक्ट्रीज जो हैं वापस आगे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगी। तो इस तरीके से एक ऐसा जंक्चर है जिसके ऊपर अभी फोकस करने की ज़रूरत है। और अगर हम फिस्कल डेफिसिट को लेके वरीड रहे तो उससे बहुत ज़्यादा 10 फैक्टर और हमारे नेगेटिव रहेंगे। डिमांड हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग ग्रो अप नहीं कर पाएगा, इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगे, और फिर फॉरेन इन्वेस्टर भी कैसे आएगा। अगर खाली फिस्कल डेफिसिट अगर हम इंप्रूव करके 2.5% पे भी ले आते हैं और इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं है तो फिर उसका भी कोई फायदा नहीं है। हम समझते हैं कि अगर डिमांड को एड्रेस करके इकोनॉमी में मोमेंटम आ जाता है, इकोनॉमी जो हमारा 4.5% पे है अगर वापस 6-7% पे आ जाए और नॉमिनल जीडीपी जो है 10% हो जाए तो फिस्कल डेफिसिट की प्रॉब्लम भी ऑटोमेटिकली एड्रेस हो जाएगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। फॉरेन इन्वेस्टर भी काफ़ी अट्रैक्टिव रहेंगे। चलिए अब रुख करते हैं करेंसी बाजार का। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 6 पैसे की कमजोरी से 71 रुपए 3 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर आ गया। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़त का भी दबाव निवेशकों की धारणा पर पड़ा। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हस्तक्षेप की अपेक्षा के बीच आयातकों ने हेजिंग की, जिसके चलते रुपया कमजोरी में रहा। जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं, अमेरिका के जो मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स हैं वो काफी अच्छे आ रहे हैं, जिसके चलते डॉलर में तेजी आ गई है। हम कच्चे तेल में तेजी देख रहे हैं। आपको लगता है रुपए में शायद आने वाले दिनों में दबाव बढ़ सकता है, डिप्रिसिएशन बढ़ सकती है और वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, रुपए के ऊपर दबाव नहीं आएगा क्योंकि मार्केट्स बहुत अच्छी चल रही हैं और जब शेयर मार्केट्स अच्छी चलती हैं, कैपिटल फ्लोज आते हैं तो रुपी स्टेबल रहता है। अगर मार्केट्स में बिकवाली आती है तब जाके कच्चे तेल से भी ज़्यादा फर्क मार्केट्स के ऊपर पड़ता है। तो हम समझते हैं कि कच्चे तेल में थोड़ी 1-2 डॉलर की अगर मूवमेंट रहेगी और ये प्राइसेस सस्टेन नहीं करते हैं, अगर कच्चे तेल में थोड़ा मूवमेंट आती भी है तो वापस फिर वो सेलिंग आके प्राइसेस वहीं पे सेटल हो जाते हैं। तो मेजर फैक्टर इस समय ये है कि मार्केट्स ज़्यादा से ज़्यादा मनी फ्लो अट्रैक्ट करें, जो रिफॉर्म्स हैं वो कंटिन्यू रहें और ज़्यादा से ज़्यादा जो कैपिटल फ्लो है वो हमारी तरफ अट्रैक्टिव रहे। चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर एक नजर डालने के बाद अधिकांश दक्षिण पूर्वी एशियाई शेयर बाजारों में आज गिरावट का रुख रहा। निवेशकों ने छुट्टी के सीजन से पहले मुनाफा वसूली की। अमेरिका और चीन के बीच अंतरिम समझौते पर स्पष्टता की कमी और ब्रेक्सिट कड़ा रहने की संभावना का दबाव भी निवेशकों की धारणा पर पड़ा। जापान का निकेई और हांगकांग का हैंगसेंग प्रत्येक में 0.3% की गिरावट दर्ज हुई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक 0.1% के नुकसान में रहा। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक लगभग स्थिर रहा। हालांकि दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.1% की बढ़त दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां रुख मिला-जुला था और कारोबार सीमित दायरे में हो रहा था। लंदन का फुटसी 0.2% की बढ़त पर था, जबकि फ्रांस के कैक में 0.1% का नुकसान और जर्मनी के डैक्स में 0.4% की गिरावट चल रही थी। In the US markets, the S&P 500 inched to an all-time high yesterday, extending a record-setting run on investors' optimism about global economic growth. The Dow Jones Industrial Average and the S&P 500 both added 0.1% and Nasdaq Composite Index gained 0.3%. यूएस चाइना की बीच जो डील हुई है, जो अंतरिम समझौता हुआ है, इससे आप कितने उत्साहित हैं और आपको लगता है कि अब ये जो एक मेजर निगलिंग फैक्टर था इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिचुएशन में वो शायद सेटल हो जाएगा? जी बिल्कुल, उसमें ऐसा है कि जो यूएस चाइना का ट्रेड टसल काफ़ी महीनों से चला है, लगभग साल से ज़्यादा, तो ज़्यादा गहरा ट्रेड टसल रहा है, तो इसका इम्पैक्ट बहुत हुआ है इकोनॉमी के ऊपर। इसका जो ग्रोथ है, ग्लोबल ग्रोथ हमारा 3% पे आ गया है और एस्टीमेट्स हैं, आईएमएफ के एस्टीमेट्स हैं कि 0.8% इसका इम्पैक्ट हुआ है पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, जिसका कि लगभग कोई $700 बिलियन बन जाता है। तो अभी ये अगर सेटलमेंट हो रहा है और हो ही गया है, काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, तो इससे एक तो जो ट्रेड है, जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी का, वो वापस मोमेंटम में आएगा और जो ग्लोबल ग्रोथ है वो 3%, जो 3% है, उससे वापस बढ़ के हमें लगता है कि लगभग अगले साल का जो ग्रोथ है वो 3.5 और 4 के बीच में रहना चाहिए, जिसका कि पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को फायदा होगा। तो ट्रेड वॉर जो थी, ना ही तो चाइना के फेवर में थी, ना ही यूएस के फेवर में। दोनों इकोनॉमीज हैं, लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं, दोनों ही आइसोलेशन में नहीं काम कर सकती और हमारे लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। एक इकोनॉमी से हम 16% इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से,
जो हमारे टोटल इंपोर्ट हैं, दूसरी इकोनॉमी को हम 16% एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारा टोटल एक्सपोर्ट है। तो दोनों की इंपॉर्टेंस हमारे लिए है। हमें किस तरीके से गेन करना है वो हमें देखना है। हमने बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर रहे हैं जिस वजह से हमारा जो सक्सेस है वो उतना नहीं हो पाया है। आने वाले टाइम में आशा है कि हम जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें अपना प्रेजेंस एक्सपोर्ट्स में अपना और इंक्रीज कर पाएं। Looking at the global markets, the oil prices today hovered near 3-month peaks, buoyed by falling US crude inventories and thawing trade relations between the United States and China. Brent crude prices were trading around $66.20 per barrel, and WTI prices were at around $61 per barrel when reports last came in. उधर सोने में लगातार तीसरे दिन हल्का कारोबार रहा। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का मूल्य 12 रुपए की मामूली बढ़त से 38,804 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी का मूल्य 65 रुपए कम होकर 45,485 रुपए प्रति किलो पर आ गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी में कारोबार लगभग स्थिर था। सोना मामूली बढ़त के साथ $1,475.50 प्रति आउंस पर और चांदी मामूली गिरावट के साथ $16.94 प्रति आउंस पर थी। जो ये सुलझता नजर आ रहा है इंटरनेशनल सिचुएशन, आपको लगता है अब स्थिरता रहेगी सोने की कीमत में? एक शब्द में बताएं। जी बिल्कुल स्थिरता रहेगी, लेकिन प्राइसेस जो है वो पॉजिटिवली बायस्ड रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस विस्तृत चर्चा के लिए डॉक्टर शर्मा आने के लिए हमारे प्रोग्राम में। जी थैंक यू। Thank you, Dr. Sharma. Before we close, the reminder of the headlines. Equity benchmarks advanced to fresh lifetime highs for the third session in a row. Sensex closes at 41,674. Nifty settles at 12,260. Rupee weakened 6 paise against the US dollar, and Brent crude prices hover about $66 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और अवसर बीत जाए। अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आके चले जाएंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए। बड़े छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Market Mantra brought to you by नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। Market Mantra